Okay, we are live. Shubham? Okay. Uh, Hello and welcome to today's session with Crohn's and colitis cured. Today we are having a live discussion on nutrition and IBD with Miss Nisha Soni. She is a master's. She has done a master's in food and nutrition, and she is a gold medalist. And she is also a founder of Balanced Diet Clinic in Mumbai. Nisha, would you like to introduce yourself? Yeah, thank you. Thank you. Good evening, everyone. This is Nisha Soni, and I'm qualified nutritionist. I have done MSc in Foods and Nutrition from Maharana Pratap University of Agriculture Technology, Udaipur, Rajasthan, and I'm gold medalist and have worked with ICMR, Indian Council of Medical Research, New Delhi. After that, I have worked with FSSAI, Food Safety and Standard Authority of India, Mumbai, and from last 3 years I'm running my own clinic Balanced Bites in Mumbai, and we work for both normal and therapeutic conditions. So that's all. Should we start for presentation? Yeah, you can start for presentation. उसमें ऐसे skills होते हैं कि मतलब Please allow me to share my screen. one sec. It is showing host disabled participant screen sharing. Okay, एक सेकंड मामा जी मैं बात करता हूँ एक बार. हाँ हाँ आप ट्राई कर. निशा ट्राई नाउ. Yeah. Is it working? Can you see my screen now? No. Yeah. Yeah. Okay. Okay, so nutrition has very important role in inflammatory bowel disease. So today we are going to discuss our main agenda of this discussion is IBD क्या है, inflammatory disease के sign and symptoms क्या है, biomarkers किन क्या क्या biomarkers हैं या digestive procedures हैं जिनके थ्रू हम ये जज कर सकते हैं कि IBS confirmed है या IBD confirmed है. उसके बाद IBS और IBD में कितना difference है, क्या टाइप्स हैं, सिमिलैरिटीज विद आईबीडी, रोल ऑफ डाइट एंड इन आईबीडी and impact of IBD on nutritional status, effective dietary methods, and then we can have question answer session. Inflammatory bowel disease. Inflammatory bowel disease is a group of inflammatory conditions which is characterized by inflammation of GI tract. So GI tract is start from mouth to our anus. It includes mouth, esophagus, stomach, intestine. Small intestine contains duodenum, jejunum and ileum, and after that our large intestine, mainly ascending colon and descending colon and anus. So it is whole is GI tract. Prolonged inflammation can damage the tract, and IBD is an autoimmune disease. Autoimmune means our own body's immune system start attacking, which can attack any part of digestive system, but generally जो inflammatory bowel disease में हम दो main disease आज cover करने वाले हैं, Crohn's disease and ulcerative colitis. In Crohn's disease, it affects end of small intestine. It can affect any part of GI tract, but mainly it affects ending of small intestine and beginning of large intestine. And Crohn's disease is transmural inflammation. Transmural means it can affect all layers of intestine. Our intestine has 5 layers and it can affect all 5 layers. Ulcerative colitis, it causes inflammation of large intestine and colons and rectum, and it is non-transmural inflammation. It means it generally affects first layer and second layer or mucosa or submucosa of the intestine. Next is causes of IBD. Actually, there are no exact cause or
exact causes are unknown. So researchers believe that mainly 4 factors can be the causes of the IBD. Genetic component, HLA-DQ28 genotype. It is human leukocyte antigen which is affected in this IBD, and environmental triggers. There are several environmental triggers which may affect IBD or which may lead to IBD, like smoking. If someone is doing smoking from long period of time, it may cause inflammation of intestine. Appendectomy, removal of appendix, oral contraceptive pills, and refined and processed diet. धीरे धीरे हमारा डाइट जो ट्रेडिशनल डाइट था उससे मूव होके वेस्टर्न डाइट की तरफ गया है. सो वेस्टर्न डाइट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ रिफाइंड फूड्स, शुगर्स, polyols, alcohols, which may cause which can affect our gut flora or intestinal bacterial composition and size. So it may lead to inflammation of the intestine. Deprivation from mother's milk. मदर्स मिल्क का नहीं होना के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. मे बी कुछ ऐसा अर्जेंसी कि मदर फीड नहीं कर सकती है बेबी को, और मे बी अनअवेयरनेस. अगर फर्स्ट फीड कोलेस्ट्रम से लेके ब्रेस्ट फीड पे बच्चे को 1 ईयर मिनिमम रखा जाए तो उसके इनिशियल लाइफ के टाइम पे आईबीडी होने के चांसेस कम रहते हैं, जबकि जिन बच्चों को मदर्स मिल्क नहीं मिलता है उनको इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं. एंड प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स. लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो एंटीबायोटिक्स हेल्दी बैक्टीरिया और पैथोजेनिक बैक्टीरिया दोनों पे अटैक करती है, दोनों को किल करती है, जिसकी वजह से हमारी गट फ्लोरा चेंज होती है. थर्ड है इम्बैलेंस ऑफ गट माइक्रोफ्लोरा. अगेन जैसा मैंने पहले बताया, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया का कंपोजिशन और साइज दोनों चेंज होता है. ऑटो इम्यूनिटी. इसको ऑटो इम्यूनिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि आईबीडी में हमारा खुद का इम्यून सिस्टम हमारे अगेंस्ट काम करने लगता है इंटेस्टाइनल एंटीजन के खिलाफ. इसलिए इसमें जब कोई एंटीजन आपकी इंटेस्टाइन में जाता है और बॉडी उसको एज अ फॉरेन मटेरियल आइडेंटिफाई करती है तो उसके लिए एंटीबॉडीज बनाती है, और उस एंटीबॉडीज के वजह से आपकी इंटेस्टाइनल परमेबिलिटी को अफेक्ट करती है. Then that antigen can go into blood and it can cause systemic inflammation, which may again increase the symptoms of inflammatory disease. Nisha, can you please explain genetic component once again? Genetic component, when we talk about is there any relationship with hereditary or something like that, so well-known research studies are not available, but some studies show that 5 in 1 person have IBD patient in their first degree relationship, means siblings, parents, they are first degree relatives, and 5 in 1 patient have this type this. And in IBD, when you have IBD, what happened, your genetic component means our body has some antigens, so your body is making antibody against this HLA-DQ28 genotype. Okay. So which will cause inflammation. Okay. Then symptoms, frequent urgent bowel movements, because our intestine is involved in digestion and absorption. If small intestine is involved, then digestion get affected, and if only large intestine is involved, then only absorption is affected. So because of low absorption and digestion, undigested food can cause urgent bowel movements. And diarrhea, constipation, दोनों जनरली डायरिया ज़्यादा देखा जाता है, बट कॉन्स्टिपेशन भी कुछ पेशेंट्स में सिम्टम्स दिखता है. सेकेंड है ब्लडी स्टूल. स्टूल में ब्लड या म्यूकस का प्रेजेंट होना. जनरली आईबीएस में म्यूकस और आईबीडी में ब्लड के कुछ स्ट्रेन्स आपको स्टूल में मिलते हैं. एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्पिंग, फटीग, क्योंकि आप प्रॉपर जितना ले रहे हैं अमाउंट वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है और आपका इन्फ्लेमेशन के कारण क्रैम्पिंग है, continuous discomfort है, which may lead to fatigue. Anorexia means loss of appetite. Weight loss and hypochromic microcytic anemia. कई सारे तरीके के एनीमिया होते हैं जिसमें आईबीडी में मोस्ट कॉमन है हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक, मींस जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं उनका साइज जितना बड़ा होना चाहिए, उनका डेवलपमेंट जितना बड़ा होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है, छोटा रहता है. और हाइपोक्रोमिक मींस उनका कलर
पेल रह जाएगा। ये किस वजह से होता है? आयरन डेफिशिएंसी। एनीमिया विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है, एनीमिया प्रोटीन डेफिशिएंसी से भी हो सकता है। तो आईबीडी में मोस्ट कॉमन एनीमिया का टाइप है हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया, जो कि आयरन डेफिशिएंसी से होता है। नेक्स्ट है हाउ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन गेट अफेक्टेड इन आईबीडी। मेनली आईबीडी में हम दो डिजीज डिस्कस कर रहे हैं, क्रोन्स डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो जैसा मैंने पहले बताया, क्रोन्स डिजीज में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड पोर्शन मींस इलियम एंड लार्ज इंटेस्टाइन का बिगिनिंग पोर्शन अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमारे फूड का डाइजेशन जो इलियम में होने वाला है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, तो डाइजेशन अफेक्ट होता है। और एब्जॉर्प्शन भी अफेक्ट होता है, क्योंकि इंटेस्टाइन स्मॉल और लार्ज दोनों एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर है पुअर एब्जॉर्प्शन एंड कोलोन इन्फ्लेमेशन कैन कॉज डायरिया ऑल्सो। अगर वहां पे इन्फ्लेमेशन है और एब्जॉर्प्शन पूरा नहीं हुआ है, तो जो अनएब्जॉर्ब्ड वेस्ट रहेगा, अनएब्जॉर्ब फूड रहेगा, वो हमें डायरिया ज्यादा कॉज करेगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए डाइजेशन तक कोई इश्यू नहीं होता है, डाइजेशन इजीली होता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। ड्यू टू इन्फ्लेमेशन इन कोलोन इट कॉजेज अर्जेंसी एंड डज नॉट रीएब्जॉर्ब वाटर प्रॉपरली, विच में रिजल्ट टू डायरिया। जब फूड हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके बाद स्टूल फॉर्मेशन होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली वाटर रीएब्जॉर्ब होता है स्टूल से, और विटामिन के रीएब्जॉर्ब होता है। तो विटामिन के का एब्जॉर्प्शन और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन दोनों अफेक्ट होते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस और विटामिन के डेफिशिएंसी भी कॉमन है। नेक्स्ट, हु गेट्स आईबीडी? एज जनरली 15 to 35 ईयर्स ऑफ एज पे डायग्नोस होता है। अर्ली एज पे भी हो सकता है, इवन लेट एज पे भी हो सकता है, बट जनरली 15 to 35 में डायग्नोस होता है। जेंडर, इट अफेक्ट्स बोथ इक्वली मेल एंड फीमेल। फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, 5 में से एक जने को इस तरह से डिजीज होती है कि उसके किसी ना किसी रिलेटिव को, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को आईबीडी हो सकता है। सिगरेट स्मोकिंग, जब लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए स्मोक करते हैं तो उसकी वजह से इंटेस्टाइन के इन्फ्लेमेशन हो सकता है। नाउ बायोमार्कर्स और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स, क्या ऐसे टेस्ट हम करा सकते हैं जिनसे हमें आइडेंटिफाई हो सके हमारी डिजीज? ब्लड टेस्ट, अगर ब्लड टेस्ट करते हैं और आईबीडी है तो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का काउंट कम आता है। ये कम आने का रीजन है आयरन की डेफिशिएंसी और विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी, दोनों की डेफिशिएंसी, क्योंकि हमारा इंटेस्टाइन प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, इस वजह से तो आरबीसी का काउंट घट जाता है। प्लेटलेट्स एंड सीआरपी, सीआरपी इज सी रिएक्टिव प्रोटीन, दैट इज दीज आर मार्कर्स फॉर इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। अगर इनका हाई अमाउंट आपकी रिपोर्ट्स में आ रहा है, ये इन्फ्लेमेशन शो करता है, बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, उसकी वजह से ये हाई आते हैं। अब ये आरबीसी का कम आना और प्लेटलेट्स और सीआरपी का हाई आना अकेला इंडिकेटर नहीं हो सकता है आईबीडी के लिए, कोई और डिजीज भी ये रिजल्ट शो कर सकती है। फिर आते हैं स्टूल टेस्ट पे। स्टूल टेस्ट पे अगर हम बात करते हैं तो जब स्टूल टेस्ट करते हैं तो मेनली दो प्रोटीन्स जो कि इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में प्रोड्यूस होते हैं, उन दोनों का असेसमेंट किया जाता है। और आईबीडी के पेशेंट्स में अगर इसका अमाउंट ज्यादा आ रहा है, इट मीन्स म्यूकोजल लाइनिंग अफेक्टेड है। तो स्टूल टेस्ट में प्रोटीन के मेजरमेंट से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंडोस्कोपी प्रोसीजर, एंडोस्कोपी में दो तरह से किया जाता है, एक डायरेक्ट कैमरा अंदर इंजेस्ट करते हैं बाय माउथ, एंड सेकंड वन इज कैप्सूल एंडोस्कोपी, जिसमें कैप्सूल फॉर्म में कैमरा को अंदर डाला जाता है। फिर उसकी इमेजेस हम बाहर अपने मॉनिटर पे देख सकते हैं, जिसमें लेजन्स, इन्फ्लेमेशन साफ विजिबल रहते हैं कि कौन से पेचेस पे ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ये एंडोस्कोपी के थ्रू जज कर सकते हैं। एंड एक्सटर्नल इमेजिंग प्रोसीजर, जिसमें सीटी स्कैन एंड एमआरआई शामिल है। अब कॉम्प्लिकेशंस, अगर आईबीडी क्योंकि एक क्रोनिक डिजीज है, लॉन्ग टर्म चलने वाली है, जिसका क्योर नहीं है बट इट कैन बी कंट्रोल्ड, अगर उसका कंट्रोल या मैनेजमेंट ठीक तरीके से नहीं होता है, इट मे लीड टू डीप अल्सरेशन बिकॉज इट इज अफेक्टिंग आर म्यूकोजल intestinal lining. Ulcerative colitis 2 layers and Crohn's disease affecting all 5 layers. So it may cause deep ulceration. Ulceration are like patches, lesions on the wall. And bowel obstruction,
It can cause bowel obstructions and infection and malnutrition. Longer time period के लिए digestion और absorption affected रहते हैं, तो nutrient deficiency होती है और malnutrition को lead करती है. Colon cancer and poor absorption of micronutrients can lead to osteoporosis and anemia. Now, why mainly osteoporosis and anemia? Because anemia का मैंने आपको बताया iron deficiency किस तरह से affect करती है. ऑस्टियोपोरोसिस इसलिए अफेक्ट करता है क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस में कैल्शियम और विटामिन डी जो हमारी बोन की हेल्थ के लिए जरूरी है, अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी नहीं है या विटामिन डी हम सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं, अगर डेफिशिएंट है, तो वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है. बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम होगा लेकिन विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं हो सकता, क्योंकि वो दोनों कंबाइंड होके ही आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है. तो इसलिए अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी है विटामिन डी के कारण या कैल्शियम के पुअर इनटेक के कारण, कैल्शियम का पुअर इनटेक आईबीडी में इसलिए भी होता है क्योंकि डायरिया की वजह से लैक्टोज कंटेनिंग डाइट अवॉइड करते हैं, डार्क लीफी वेजिटेबल्स अवॉइड करते हैं फाइबर की वजह से. तो इसलिए ये कैल्शियम के मेन सोर्सेज हैं वेजिटेरियन डाइट में. अगर ये हम कैल्शियम का इनटेक पुअर है या कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन पुअर है या फिर इनएक्टिविटी ज्यादा है, क्योंकि इस डिजीज में कई बार जब फ्लेयर्स पे रहती है डिजीज तो पेशेंट का मूव करना भी मुश्किल होता है, कम मूवमेंट्स रहते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी पुअर रहेगी तो भी आपके बोन्स पे फर्क पड़ता है और इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस और एनीमिया मेनली अफेक्ट होता, मेनली रिजल्ट मिलता है पुअर एब्जॉर्प्शन के कारण. नेक्स्ट है आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम. अभी हमने बात की आईबीडी की. अभी तक आईबीडी जो है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के वजह से हमें फेस करना पड़ रहा है. सेकंड है आईबीएस जो कि फंक्शनल डिसऑर्डर है. नॉर्मली क्या होता है जब हम हमारा जो इंटेस्टाइन है, हमारा जो जीआई ट्रैक्ट है, उसका एक इंटरमिटेंटली एक तरह का मूवमेंट होता है या जिसको हम मोटाइलिटी भी कहते हैं. मसल्स ऑफ लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन्स इंटरमिटेंटली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू मूव फूड along the digestive tract. आप जब भी कोई खाना खाते हैं तो वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू आगे मूव करता है. जैसे हमने च्यू करके अपना खाना स्वेलो किया तो वो ईसोफेगस से ही जाने का उसका तरीका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है. तो जिस तरीके से वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो पूरे नॉर्मल केस में इंटेस्टाइन का ऐसा फंक्शन रहता है. आईबीएस में ये फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है. डिस्टर्ब होने के कई सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन जब ये फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपका एक फिक्स टाइम पीरियड नहीं रहेगा मोटाइलिटी का. जब भी ज्यादा मोटाइलिटी होगी तो अर्जेंसी ऑफ बॉवल मूवमेंट्स हमको फील होगा. नाउ पेशेंट विद आईबीडी में आल्सो हैव आईबीएस, कंबाइंड हो सकते हैं. आईबीएस के 4 तरीके के होते हैं, आईबीएस डी, सी, एम एंड यू. आईबीएस डी प्रीडोमिनेंटली डायरिया, मेन सिम्टम उसमें डायरिया रहता है. सी जिसमें कॉन्स्टिपेशन रहता है. आईबीएस एम मिक्स टाइप, कभी उनको डायरिया का प्रॉब्लम रहता है, कभी उनको कॉन्स्टिपेशन. एंड आईबीएस यू अनआइडेंटिफाइड, इसके बहुत सारी प्रिवलेंस है. मींस बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जिसको आईबीएस के सिम्टम्स हैं लेकिन वो डायग्नोज्ड नहीं है, अनआइडेंटिफाइड है. नेक्स्ट सिम्टम्स क्या रहते हैं, आईबीडी से मैच करते हैं. एब्डोमिनल पेन, क्रैम्पिंग, डिस्पेप्सिया, फ्लैटुलेंस, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन. आईबीएस में जनरली पेशेंट्स कॉन्स्टिपेशन ज्यादा रिपोर्ट करते हैं. कॉजेज, आईबीएस के कॉजेज क्या हो सकते हैं. सेंसिटिविटी ऑफ द जीआई ट्रैक्ट टू सर्टेन फूड्स. सेंसिटिविटी टुवर्ड्स सर्टेन फूड्स लाइक जर्मिनेटेड फूड प्रोडक्ट्स, स्प्राउट्स. आपने कभी भी ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ लोगों को स्प्राउट्स खाने से कोई इश्यू नहीं होता, इजीली वो डाइजेस्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन कुछ लोग जिनको आईबीएस और आईबीडी नहीं है, बावजूद उसके भी उनको अगर स्प्राउट्स या होल सीरियल्स, होल पल्सेस कंज्यूम कर रहे हैं तो उनको डिस्कम्फर्ट होने लगता है. ये किस वजह से होता है, क्योंकि हमारी जीआई ट्रैक्ट कुछ फूड आइटम्स के लिए सेंसिटिव हो जाती है. किसी के ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, तो जब ज्यादा सेंसिटिव होती है तो आप कुछ फूड आइटम्स के लिए सेंसिटिव रहते हैं. जो लॉन्गर टाइम तक अगर आप फूड फिर भी ले रहे हैं, आपकी बॉडी उसके लिए सेंसिटिव है, तो वो आईबीएस को लीड कर सकता है. इम्बैलेंस ऑफ द गट फ्लोरा, जैसा आईबीडी में भी अगर आपका गट फ्लोरा अफेक्टेड है, गट फ्लोरा अफेक्ट होने के लिए मैंने एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी अभी बताए थे, जिसमें अगर हमारा फूड बैलेंस्ड नहीं है,
ज्यादा वेस्टर्नाइज्ड डाइट है, तो वेस्टर्नाइज्ड डाइट मींस रिफाइंड फूड ज्यादा है, शुगर एल्कोहल कंजम्पशन अगर ज्यादा है, तो ये लीड कर सकता है गट फ्लोरा के कंपोजिशन और साइज को बिगाड़ सकता है. Alteration of specific compounds such as serotonin. Now, serotonin is a chemical compound which is responsible for well-being and happiness, and it produce our body produce serotonin in brain, our bowel. So mainly our gut produces serotonin. 95% of serotonin produced by our gut. And in IBS, if serotonin amount is increases, then it can lead to IBS. Why it is affecting वो अलग फैक्टर्स हैं, लेकिन अगर सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है तो IBS हो सकता है. हैविंग अ रीसेंट जीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शन, किसी भी तरह का अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हुआ है या आईबीडी की हिस्ट्री रही है तो भी आईबीएस हो सकता है. स्ट्रेस इज डायरेक्टली कनेक्टेड. आवर गट, आवर इंटेस्टाइन, आवर जीआई सिस्टम फुल्ली कनेक्टेड विद आवर ब्रेन. यू मे हैव ऑब्जर्व मेनी टाइम्स, अगर हम किसी एग्जाम, इवन किसी प्रेजेंटेशन या किसी भी बड़े काम के लिए जा रहे होते हैं, तो हमको अपने इंटेस्टाइन में, अपने जीआई सिस्टम में हमको फील होने लगता है ना. नर्वसनेस की वजह से हमारे हॉर्मोन्स चेंज होते हैं, नर्वसनेस की वजह से हमारी जीआई सिस्टम की मोटाइलिटी चेंज होती है. ब्रेन एंड जीआई सिस्टम वर्क्स टुगेदर, अफेक्ट करता है. तो अगर आप स्ट्रेस्ड हैं उसकी वजह से भी, अगर लॉन्ग टर्म तक स्ट्रेस है उसकी वजह से भी आईबीएस हो सकता है. सम फूड्स मे कॉज लाइक कार्बोनेटेड बेवरेजेस, कॉफी एंड अल्कोहल. बहुत सारे फूड्स हैं जो कि आपकी जीआई सिस्टम के लिए अच्छे नहीं है, जो आपकी इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, जो गट फ्लोरा का कंपोजिशन को डिस्टर्ब करते हैं, उसकी वजह से आईबीएस हो सकता है. Now, role of nutrition in IBD management. It's an autoimmune and chronic disease which cannot be cured, so it is managed. So its management become very, very essential to everyone. Now, how nutrition is going to manage IBD? So see, there are four things. Food can change our motility of intestine. You may have observed कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिनको लेने के बाद आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिलता है. कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिनको हम डायरिया के टाइम पे नहीं लेते हैं. कुछ फूड ऐसे होते हैं जब हॉट होते हैं तो उससे मोटालिटी इंक्रीज होती है. टेम्परेचर ऑफ फूड, क्वालिटी ऑफ फूड एंड टाइप ऑफ फूड, ये सभी हमारे इंटेस्टाइन की मोटालिटी को चेंज करते हैं. सेंसिटिविटी ऑफ जीआई ट्रैक्ट, जैसा मैंने पहले बताया, सर्टेन फूड्स के लिए हमारी जीआई ट्रैक्ट सेंसिटिव होती है. गट फ्लोरा कंपोजिशन एंड साइज, आप जो फूड ले रहे हैं उससे आपकी गट फ्लोरा चेंज होती है. अगर लंबे टाइम तक शुगर इनटेक ज्यादा रहता है, या आपने नाम सुना होगा एफओडी एमएपी डाइट, आईबीडी और आईबीएस में मोस्ट कॉमनली दिया जाता है. तो वो क्या होता है? फर्मेंटेबल ओलिगोसेकेराइड्स, डायसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स एंड पॉलीओल्स, ये शॉर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि आपकी बॉडी में प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होकर आगे मूव होते हैं और इंटेस्टाइन तक पहुंचते हैं, जिसके बाद बैक्टीरिया उनको फर्मेंट करते हैं और उसके बाद में वो ब्लोटिंग गैस प्रोड्यूस करते हैं. डिस्पेप्सिया और आईबीडी के सिम्टम्स को बढ़ा देते हैं. तो गट फ्लोरा का कंपोजिशन डिपेंड करता है आपका डाइटरी पैटर्न कैसा है. अगर आपकी डाइट में ज्यादा शॉर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट्स रहेंगे तो ये ज्यादा अफेक्ट करने वाला है. हमें आईबीडी में अगर डायरिया है, आईबीडी में जनरली भी हम लो फाइबर डाइट रिकमेंड करते हैं. लो फाइबर में फाइबर के भी डिफरेंट टाइप्स हैं जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. नेक्स्ट है बैरियर फंक्शन. बैरियर फंक्शन यही होता है कि इंटेस्टाइन की जो वॉल है वो एक बैरियर का काम करती है. जो फूड आप ले रहे हैं उसमें से डाइजेशन के बाद क्या चीजें एब्जॉर्ब होनी है, क्या किन किन न्यूट्रिएंट्स का रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पे, किस साइट पे होगा, ये चीजें आपका इंटेस्टाइनल लाइनिंग पे डिसाइड होता है. तो इंटेस्टाइनल लाइनिंग, जो गट फ्लोरा है, माइक्रोबायोटा है, वो एक इंटेस्टाइनल परमिएबिलिटी का काम करती है कि उसकी परमिएबिलिटी कैसी रहेगी. तो इट अगेन डिपेंड्स ऑन फूड इनटेक. नाउ जीआई फंक्शंस गेट डिस्टर्ब्ड in IBD and may cause weight loss, nutritional deficiencies, vitamin and mineral deficiencies like folic acid, vitamin B12, कैल्शियम, आयरन एक्सेट्रा. ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं. अगर कहीं पे कुछ रहता है तो आप पूछिए. इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, जो कि वाटर के रीएब्जॉर्प्शन के कारण बैलेंस रहते हैं, लेकिन
आईबीडी के केस में लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, जिस वजह से इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होता है। डिहाइड्रेशन, फ्रीक्वेंट मोशंस के वजह से, डायरिया के वजह से वाटर लॉस होता है, जो कि डिहाइड्रेशन को लीड करता है। ऑस्टियोपोरोसिस मैंने पहले डिस्कस किया, कैल्शियम एंड विटामिन डी। एंड ग्रोथ रिटार्डेशन इन किड्स। ग्रोथ रिटार्डेशन मींस स्टंटिंग एंड वेस्टिंग। दो न्यूट्रिशनल टर्म्स हैं ये। स्टंटिंग मींस हाइट के अकॉर्डिंग, सॉरी एज के अकॉर्डिंग हाइट का ना होना, लेसर हाइट एज पर देयर एज, उसको हम स्टंटिंग कहते हैं, जो कि क्रोनिक मालन्यूट्रिशन को शो करता है। लॉन्ग टर्म आपका डाइट सही नहीं है तो वो आपकी हाइट रुक जाती है, ये शॉर्ट टर्म नहीं होता है, लॉन्ग टर्म होता है। तो स्टंटिंग एंड वेस्टिंग, वेस्टिंग इज लो मसल मास एज पर योर हाइट। आपकी हाइट तो ठीक है एज के अकॉर्डिंग, लेकिन आपका मसल मास बहुत कम है, तो उसको हम वेस्टिंग कहते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म मालन्यूट्रिशन को डिपिक्ट करता है। अगर शॉर्ट टर्म मालन्यूट्रिशन है विच कैन बी करेक्टेड बाय सप्लीमेंट्स और नेचुरल डाइट, अगर बैलेंस तरीके से देंगे तो वो फिर से ठीक हो सकता है। लेकिन अगर स्टंटिंग है तो उसको क्योर नहीं किया जा सकता, फिर वो शॉर्ट हाइट ही रहती है। ज्यादा कॉमन होती है सीडी में एज कंपेयर टू अल्सरेटिव कोलाइटिस, बिकॉज क्रोन्स डिजीज में स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के इन्वॉल्वमेंट के वजह से डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ आर गेटिंग अफेक्टेड, दैट्स व्हाई इट इज मोर कॉमन इन सीडी एज कंपेयर टू अल्सरेटिव कोलाइटिस। नाउ न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग। अगर आप डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं तो सबसे पहले पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री, कितना लंबे टाइम पीरियड से आपकी क्या क्या मेडिकल हिस्ट्री रही है वो जज की जाती है। फिजिकल एग्जामिनेशन, देखने में आपका एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स भी इसमें आते हैं, जैसे कि हाइट, वेट, और आपकी लैब रिपोर्ट्स जो भी पहले मैंने डिस्कस किया, ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट, एंडोस्कोपी, ये सारे रिपोर्ट्स को देखा जाता है। न्यूट्रिएंट इनटेक असेसमेंट बाय डाइटरी रिकॉल्स, आपका न्यूट्रिएंट इनटेक लॉन्ग टर्म पे कैसा चला रहा है, उसके लिए न्यूट्रिशन में कई सारे मेथड्स रहते हैं, जैसे कि मोस्ट कॉमन इज 24 आवर्स डाइट रिकॉल मेथड। मीन्स वी आस्क व्हाट यू हैड yesterday, start from early morning to late night, and quantity of the food, quality of the food. So 24-hour recall method we generally use for normal weight loss cases and weight gain cases, other mild cases. But if we are talking about severe or moderate cases, then we need to get history of longer period of time. So we can take recall for last 7 consecutive days. एंड फूड फ्रीक्वेंसी टेबल्स। फूड फ्रीक्वेंसी टेबल्स ऐसी टेबल्स रहती हैं जिनमें हम मेनली अफेक्टेड न्यूट्रिएंट्स, जैसे आईबीडी में कैल्शियम एंड आयरन आर mainly affected, so we just list down all sources of calcium and iron and we ask to patient कितना फ्रीक्वेंट उन्होंने वो चीजें खाई हैं। जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल आप कितना फ्रीक्वेंट ले पाते हैं, तो मे बी वो अपने फ्लेयर होने, डिजीज के फ्लेयर कंडीशन में होने के कारण नहीं ले पा रहे हैं, या फिर वो अनइंटेंशनली नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन ये फूड फ्रीक्वेंसी टेबल से लॉन्गर पीरियड का आपका न्यूट्रिएंट इनटेक जज किया जा सकता है। एंड बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर से हम मसल मास, फैट मास एंड फैट परसेंटेज कितना है, बॉडी में आपका वाटर परसेंटेज कितना है, ये सभी चीजें जज कर सकते हैं, जिससे ये असेस हो सकता है कि लॉन्ग टर्म डिजीज के वजह से कितना बॉडी में ऑलरेडी लॉस हो चुका है, मेनली हमें किस तरफ फोकस करने की जरूरत है। बीएमडी टेस्ट रिपोर्ट्स, बोन मिनरल डेंसिटी, जैसा मैंने बताया ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमन है, तो वो भी एक अच्छा इंडिकेटर है शो करने के लिए कि बोन की हेल्थ कैसी है और क्या न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने की जरूरत है। नेक्स्ट है डाइटरी एम। मेनली हमारा एम रहता है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स जो भी आ रहे हैं, जो बॉवल फंक्शन को लीड कर रहे हैं, उनको हम मिनिमाइज कर सकें। प्रिवेंटिंग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पुअर होने के कारण जो डेफिशिएंसीज हो रही हैं उनको बैलेंस किया जा सके। इम्प्रूविंग न्यूट्रिशनल स्टेटस, लॉन्ग टर्म से अगर वेट लॉस है या किसी का वेट ज्यादा है, उसकी वजह से डिजीज पे कितना फर्क पड़ रहा है, तो उसको खत्म करने के लिए, उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस को बैलेंस करने के लिए काम कर सकते हैं। इम्प्रूविंग एफिकेसी ऑफ ड्रग्स, जो भी मेडिसिन आप लेते हैं वो कितना अच्छा आपकी बॉडी में परफॉर्म करेंगे, ये आपके न्यूट्रिशनल स्टेटस और आपके डाइटरी इनटेक पे भी डिपेंड करता है। जस्ट आई गिव यू वन एग्जांपल, लाइक
अगर आप विटामिन डी सप्लीमेंट ले रहे हैं लेकिन आपकी डाइट में कैल्शियम आपका एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, तो दोनों न्यूट्रिएंट इंटर रिलेटेड है। ऐसे हमारी बॉडी में कई सारे ड्रग फूड इंटरेक्शन एंड फूड फूड इंटरेक्शन भी होते हैं, मतलब जिसमें दो न्यूट्रिएंट एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। उसके अलावा अगर आपका जैसे अगर हम प्रोबायोटिक्स किसी को दे रहे हैं और साथ में हमने एंटीबायोटिक्स के साथ में ले लिया, तो ड्रग इंटरेक्शन हो जाएगा। आप जो प्रोबायोटिक का बेनिफिट चाहते हैं वो आपको नहीं मिल सकता क्योंकि आपने एंटीबायोटिक साथ में कंज्यूम किया। तो इस तरह से ड्रग्स की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए डाइटरी मॉडिफिकेशंस जरूरी हैं। रिकवरिंग द इम्पैक्ट ऑफ आईबीडी ऑन पर्सन्स ओवरऑल हेल्थ एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओवरऑल सारे सिम्टम्स को मिनिमाइज करना और न्यूट्रिशन स्टेटस को इम्प्रूव करना, विच विल ऑटोमेटिकली increase the quality of life. Now medical nutrition therapy for IBD management. मेनली जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं पहले हम उनको डिस्कस करेंगे, बाद में हम फूड सोर्सेज को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है एनर्जी। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि एनर्जी, हमको कुछ भी काम करने के लिए जो पावर चाहिए, दैट इज एनर्जी, एंड मेन सोर्स इन आवर डाइट इज कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं हमारी, जैसा मेंशन किया है, कार्बोहाइड्रेट हमारी टोटल कैलोरीज का 60% एनर्जी हमको प्रोवाइड करते हैं। इट मे डिफर 55 to 75%, जब तक कोई बैलेंस डाइट पर है ये परसेंटेज ऐसा रहता है। तो 60% कैलोरीज हमको कार्बोहाइड्रेट से लेनी है। अब कार्बोहाइड्रेट्स में कौन से कार्बोहाइड्रेट्स आईबीडी में नहीं लिए जा सकते? एफओडी एमएपी लो रखना है, फर्मेंटेबल ऑलिगोसेकेराइड्स, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप है। जब कितना चेन के हिसाब से बनता है, मोनोसेकेराइड सिंगल यूनिट, डाइसेकेराइड डबल यूनिट, ऑलिगोसेकेराइड 2 to 10 यूनिट्स, एंड फर्मेंटेबल जो कि आपके इंटेस्टाइन में ज्यादा फर्मेंट होंगे, ज्यादा ब्लोटिंग, ज्यादा गैस प्रोड्यूस करेंगे, तो इनको हमें लो रखना है। फाइबर के टाइप्स क्या हैं? अभी फाइबर है सोल्यूबल विस्कस फाइबर विद लो रेट ऑफ फर्मेंटेशन। इट मींस फाइबर के 3 तरह से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल फाइबर। ठीक है, जो भी हम फूड प्रोडक्ट्स लेते हैं उसमें सोल्यूबल फाइबर रहता है और इनसोल्यूबल फाइबर। तो जो इनसोल्यूबल फाइबर, जैसे कि स्किन ऑफ द फ्रूट, वो इनसोल्यूबल फाइबर है। क्रूड फाइबर जो डाइजेस्ट नहीं होता है आपकी बॉडी में, सीधा आगे बढ़ेगा और आपके इंटेस्टाइन में पहुंचता है। आईबीडी में हमें इनसोल्यूबल फाइबर मिनिमाइज करना है, रिड्यूस करना है। In case of constipation or remission time, we can introduce little quantity, but in time of flare up and normal diarrhea, अगर किसी को डायरिया की प्रॉब्लम ज्यादा है तब हम insoluble फाइबर को बिल्कुल रिड्यूस करेंगे, soluble फाइबर को हम मेंटेन करेंगे। विस्कस मींस जो ज्यादा वाटर होल्ड करे, वो है विस्कस, एंड लो विस्कस विच विल नॉट होल्ड वाटर कंटेंट। तो सोल्यूबल और विस्कस फाइबर बेनिफिट देगा हमको आईबीडी की कंडीशन को क्योर करने के लिए, सिम्टम से रिलीफ देने के लिए। तो जैसे कि फ्लैक्सीड्स हैं, या ईसबगोल की भूसी जिसको हम कहते हैं, साइलम हस्क, ये सोल्यूबल फाइबर का अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें सोल्यूबल फाइबर ज्यादा रहता है, इनसोल्यूबल फाइबर कम होता है। अगर आप बाहर भी ऑब्जर्व करें, बॉडी से बाहर अगर हम फ्लैक्सीड्स में वाटर डाल देंगे तो वो जेल जैसा बन जाता है, यू मे हैव ऑब्जर्व्ड इट। और अगर आप ईसबगोल की भूसी को भी अगर दूध में या पानी में डाल के छोड़ते हैं तो वो भी जेल बन जाता है। तो ये होल्ड करते हैं, वाटर को होल्ड करके रखते हैं। तो सोल्यूबल विस्कस फाइबर विद लो रेट ऑफ फर्मेंटेशन, क्योंकि ये आपके डाइजेशन प्रोसेस को भी स्लो करते हैं, तो जल्दी मूव नहीं होते हैं, ज्यादा हेल्पफुल हैं। बेनिफिट्स हैं इनके आईबीडी और आईबीएस दोनों ही केस में। अगर डायरिया है तो ये दोनों केस में हमको ज्यादा सोल्यूबल विस्कस फाइबर रखना है। आरडीए फॉर एनर्जी आईबीडी के केस में वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, क्या उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस है, कितना माल न्यूट्रिशन है। अगर बैलेंस है, सब कुछ ठीक है, सिर्फ आईबीडी ही आपका ज्यादा चल रहा है, मेरा मतलब अगर लॉन्ग टर्म माल नहीं है, तो हम एनर्जी रिक्वायरमेंट रखेंगे 40 to 50 किलो कैलोरी पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। बॉडी वेट के हिसाब से आप कैलोरी अपना काउंट कर सकते हैं कि कितना रिक्वायरमेंट है। डाइटरी फाइबर, जनरली डाइटरी फाइबर की रिक्वायरमेंट, डाइटरी फाइबर में सब तरह का फाइबर जो हम फूड से ले रहे हैं वो इंक्लूड होता है, और नॉर्मल केसेस में 40 ग्राम रिक्वायरमेंट रहती है, आईबीडी में 15 ग्राम या उससे कम। अब अगेन डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन, क्या क्या सिम्टम्स आपको फील हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसको कम करा जाता है। अगर बहुत सीवियर केस में है तो हम इसको लेस देन 5 ग्राम्स भी रखते हैं।
नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन का मेनली हमारी बॉडी में फंक्शन होता है बॉडी बिल्डिंग, उसके अलावा टिश्यूज को हील करना, कहीं भी इन्फ्लेमेशन है तो उसको हील करता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो पेशेंट्स होते हैं, एक्चुअली जो प्रोटीन का बाय प्रोडक्ट है यूरिया, और यूरिया का कंटेंट होता है नाइट्रोजन, तो फीकल नाइट्रोजन डेली बेसिस पे लॉस होता है। सिवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस में 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एक दिन में लॉस होता है, इट इक्वल टू 125 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो काफी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है। सीरम एल्बुमिन लेवल्स भी स्लो रहते हैं, इसकी वजह से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है। तो जनरली अगर 50 किलो का इंसान है तो हम 50 ग्राम प्रोटीन रिक्वायर्ड है, रिकमेंडेशंस देते हैं, लेकिन 1.5 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट ये इंक्रीज हो जाता है। मैं फिर से कह रही हूँ, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है क्या सिम्टम्स है, ये यहाँ पे हम सारी चीजें मोस्ट कॉमन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं। 1.5 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमें प्रोटीन बढ़ाना रहता है। अब यहाँ पे डिस्कस करने की ये जरूरत है कि प्रोटीन जो है, क्योंकि हम डेयरी प्रोडक्ट्स कम ले पा रहे हैं, या फिर जैसे लैक्टोज को हम बिल्कुल अवॉइड करते हैं आईबीडी में, क्योंकि लैक्टोज कैन कॉज डायरिया बिकॉज लैक्टेज एंजाइम हमारे जेजुनम में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हमें मिल्क प्रोडक्ट्स में लैक्टोज वाली चीजें अवॉइड करनी पड़ती हैं। लेकिन हम प्रोटीन के लिए लैक्टिक एसिड ले सकते हैं, लाइक कर्ड एंड बटर मिल्क एंड पनीर, ये ऐड किए जा सकते हैं डाइट में। पनीर में फैट कंटेंट थोड़ा ज्यादा है तो लिमिटेड क्वांटिटी में अलाउ करेंगे, अदरवाइज मिल्क प्रोडक्ट्स में सिर्फ लैक्टोज हमको अवॉइड करने की जरूरत है। उसके अलावा कैल्शियम के लिए हम प्रोटीन के लिए हम और किस तरह से प्रोटीन को इम्प्रूव कर सकते हैं डाइट में, तो म्यूचुअल सप्लीमेंटेशन एंड फर्मेंटेशन। म्यूचुअल सप्लीमेंटेशन मीन्स when you mix two food groups which increases the bioavailability of protein, like जैसा अगर हम कोई फूड प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसके अंदर सपोज 100 मिलीग्राम ऑफ कोई न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, तो हमारी बॉडी उसको 100 का 100 एब्जॉर्ब नहीं करती है। आयरन के केस में बात करें तो फीमेल्स में 5% एब्जॉर्प्शन होता है, मेल्स में सिर्फ 3% होता है। तो ये काफी कम एब्जॉर्प्शन जो रहता है वो काफी कम परसेंटेज पे होता है। तो म्यूचुअल सप्लीमेंटेशन जब हम करते हैं, मतलब दाल और सीरियल, इन दोनों फूड ग्रुप्स को हम मिक्स करेंगे, 3:1 का रेशियो रखेंगे, 3 पार्ट्स ऑफ सीरियल्स एंड 1 पोर्शन ऑफ दाल। अगर हम 3:1 में मिक्स करके बनाते हैं तो उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, प्रोटीन क्वालिटी इंप्रूव होती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी उसको ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगी, वो इजी टू डाइजेस्ट एंड इजी टू अवेलेबल टू योर बॉडी रहेगा। ओके, जैसे बायो अवेलेबिलिटी हम जज करते हैं एग के थ्रू। एग की बायो अवेलेबिलिटी को 100 माना जाता है, क्योंकि जितना एग में प्रोटीन क्लेम किया जाता है, 1 एग कंटेन्स अराउंड 7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो आप जब एग लेते हैं तो 7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपकी बॉडी को मिल जाता है। तो ये एग से कंपैरिजन करके सेकेंड नंबर पे मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं, नॉनवेज फूड्स आते हैं, उसके बाद में वेजिटेरियन डाइट में म्यूचुअल सप्लीमेंटेशन अच्छा ऑप्शन है, जिसमें हम जैसे दाल राइस खिचड़ी 3 पोर्शंस आप सीरियल लीजिए एंड 1 पोर्शन आप दाल लेंगे। अब इसमें हमको क्या चेंज करना है आईबीडी के अकॉर्डिंग, दाल में हम डी हस्क दाल लेंगे, बिना छिलके वाली, सोक करके बनाएंगे। राइस भी राइस यूज कर सकते हैं, दोनों को सोक करके प्रॉपरली कुक करके हम बनाएंगे, तो इससे म्यूचुअल सप्लीमेंटेशन के थ्रू प्रोटीन की क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है फर्मेंटेशन। खमीरीकरण आपने सुना होगा, जैसे कि डोसा बनाते हैं, इडली बनाते हैं, इन चीजों में हम फूड को फर्मेंट करते हैं। आप 12 घंटे पहले उसको रख देते हैं, पूरा ग्राइंड करने के बाद फिर वो उठ जाता है, पूरा ऊपर फूलने लगता है, तो फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन में भी कुछ हेल्दी बैक्टीरियाज अवेलेबल हैं, बट फर्मेंटेड फूड क्योंकि कुक करके लिए जाते हैं, जैसे डोसा बनाया तो हमने उसको हीट पे कुक किया है, तो इस वजह से उसके बैक्टीरियाज हमारे हेल्पफुल नहीं है। लेकिन फर्मेंटेड फूड ज्यादा अच्छा प्रोटीन आपको देते हैं, इजी टू डाइजेस्ट होते हैं, विटामिन और मिनरल्स की क्वालिटी को और क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट है फैट्स। फैट्स का कितना कैसा इंटेक रहना चाहिए? मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स शुड बी प्रिफर्ड लाइक कोकोनट ऑयल। जब हम फैट कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में 2 तरह से फैट, एक होती है इमल्सिफाइड फैट, एक होती है नॉन इमल्सिफाइड फैट। इमल्सिफाइड फैट का मतलब है बटर एंड क्रीम। बटर एंड क्रीम में ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट रहता है, तो वो इमल्सिफाइड है। इमल्सिफाइड फैट
आपकी बॉडी में जल्दी डाइजेस्ट होती है, उसको डाइजेशन में टाइम नहीं लगता। जबकि अगर आप लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स और प्यूफा की बात करेंगे, ऑयल्स की बात करेंगे, तो वो हमारे इंटेस्टाइन में जाने के बाद बाइल सॉल्ट से उनका इमल्सिफिकेशन होता है, उसके बाद उनका डाइजेशन होता है। तो फैट का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में होता है, इसलिए आईबीडी में ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन के वजह से अफेक्टेड एरिया है, अफेक्टेड साइट है। तो जो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं वो इजीली डाइजेस्ट होते हैं एज कंपेयर टू लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। तो ये इनका कंजम्पशन करेंगे तो इजीली बॉडी को अवेलेबल रहेगा, जिसमें कोकोनट ऑयल रहता है। ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 रेशियो शुड बी लेस देन 4:1। आपकी डाइट जितनी बैलेंस्ड रहेगी, ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं जो कि हमको मिलते हैं। ओमेगा 3 हमको मिलता है फिश लिवर कैप्सूल्स जो आते हैं, कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल्स जो आते हैं, उनसे हमें ओमेगा 3 मिलता है। फ्लैक्सीड्स जो मैंने अभी बताया उसमें हमको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं। और भी कई सारे नट्स हैं जिनमें मिलते हैं, लेकिन आईबीडी के पेशेंट्स को हम फ्लैक्सीड्स दे सकते हैं। सारी नट्स फ्लेयर के टाइम पे नहीं दी जा सकती, रेमिशन के टाइम पे दी जा सकती हैं, लिमिटेड क्वांटिटी। एंड ओमेगा 6 जो रहता है सनफ्लावर ऑयल, सेफ्लावर ऑयल, इनमें रहता है। तो इनका एक प्रपोर्शन जरूरी है, तो इनका रेशियो 4:1 रहना चाहिए। जैसे जैसे आप वेस्टर्न डाइट की तरफ जाएंगे, बर्गर, पिज्जा और जो भी वेस्टर्न फूड रहते हैं मेनली, उन फूड में आपको इनका प्रपोर्शन बिगड़ जाता है और ये रेशियो 10:1 से लेके 50:1 तक भी जा सकता है। तो ये आपके लिए उतना ही ज्यादा हार्मफुल है। इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया को भी ये कंपोजिशन और साइज को अफेक्ट करता है, और उसके अलावा इसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन भी इसके अकॉर्डिंगली अफेक्ट होता है। इमल्सिफाइड के लिए मैंने बताया, इमल्सिफाइड फैट्स लाइक बटर एंड क्रीम आर बेटर टॉलरेटेड। अब फैट्स की रिकमेंडेशंस कितनी है? एज पर आरडीए less than 20 gram per day. We are talking about visible fat only. Food itself contains fat content which is invisible fat. Okay, and we are talking about visible fat, oil, ghee, butter, cream. It should be 20 gram per day, not more than that. Next है vitamins and minerals. Fat soluble vitamins are there, A, D, E and K. These are fat soluble vitamins. So we cannot do just fat free diet. Don't go with fat free diet. We need some amount of fats for better absorption of these vitamins. And K, I already told, K is absorbed by large intestine and it get affected in IBD and IBS both conditions. Water soluble vitamin B and C, these are water soluble vitamins. And sources are fruits, vegetables, and vitamin A mainly found in leafy vegetables. And all vegetables and fruits are good sources of vitamins and minerals. Now, IBD patients cannot consume raw vegetable salads or fruits, so we can just transform their diet or modify their recipes. We can give them pureed form, canned form, or without skin food. और रेमिशन के टाइम में स्मॉल क्वांटिटी और लो रेजिड्यू डाइट कैन बी गिवन, अदरवाइज इन फॉर्म में इनको दिया जा सकता है। इवन क्लियर सूप ले सकते हैं। बेटर सिचुएशन है तो क्लियर से थोड़ा सेमी सॉलिड फूड सूप की फॉर्म में ले सकते हैं। लिक्विड डाइट बनाई जा सकती है इन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के साथ में। मिनरल्स में सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड जिंक मेनली अफेक्ट होते हैं। और इनके लिए आगे मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगी क्या क्या फूड सोर्सेस हम ऐड कर सकते हैं। आरडीए, सॉरी ये फैट का आरडीए इधर आ गया है। अलग अलग विटामिन का अलग आरडीए रहता है। विटामिन ए के लिए इट्स 600 माइक्रोग्राम रेटिनॉल, विटामिन डी 400 इंटरनेशनल यूनिट। ई एंड के ट्रेस एलिमेंट्स हैं, इनकी रिक्वायरमेंट्स रिकमेंडेशंस की जरूरत नहीं है, वो हम फूड से पूरा कर लेते हैं। के लिए मैं फोकस करके आगे बताती हूँ सोर्सेस। एंड विटामिन बी एंड सी, बी में रहते हैं B1, B2, B3, B12 तक, इनके कई सारी वैरायटी है, तो उसके अलग अलग रिकमेंडेशंस रहते हैं। एंड विटामिन सी 40 मिलीग्राम पर डे इज द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। नाउ मैंने अभी आपको न्यूट्रिएंट्स वाइज बताया कि हमें किस न्यूट्रिएंट के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है। अभी हम फूड सोर्सेज से कैसे ले सकते हैं। फर्स्ट थिंग, हमारी डाइट में 5 फूड ग्रुप्स होते हैं।
फूड ग्रुप्स के अकॉर्डिंग डाइट लेना, जितनी वैरायटी आप लेंगे, जितनी डाइवर्सिटी होगी फूड में, मैं डाइवर्सिटी की बात कर रही हूँ तो नेचुरल फूड सोर्सेस की ही बात कर रही हूँ, जितनी डाइवर्सिटी हम लेंगे उतना हमारी इंटेस्टाइनल हेल्थ पे इम्पैक्ट रहता है। सीरियल्स, हमें इनसोल्युबल फाइबर अवॉइड करना है। हम गेहूं का आटा खा सकते हैं लेकिन हम व्हीट ब्रान नहीं खा सकते। ओके, जो आउटर आउटर पोर्शन है वो नहीं ले सकते, रिफाइंड पोर्शन है नहीं ले सकते। गेहूं से बनने वाला मैदा और सूजी हमको अवॉइड करना है, और गेहूं से ही जो ब्रान है या होल गेहूं है, होल व्हीट है, उसको हमें अवॉइड करना है। वी कैन कंज्यूम व्हीट फ्लोर। ओके, सो इसी तरह से सारे सीरियल्स में वी कैन कंज्यूम राइस, वी कैन कंज्यूम एनी सीरियल्स फ्लोर, हमें सिर्फ उसकी आउटर कवरिंग को अवॉइड करना है। अल्टीमेटली इनसोल्युबल फाइबर कंटेंट हमको रिमूव करना है, एंड वी कैन कंज्यूम द सोल्युबल फाइबर कंटेंट। पल्सेस एंड नॉन वेजिटेरियन फूड, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, properly cooked dehusked दाल, एग, some dairy products can be included। लैक्टोज हमें अवॉइड करना है, लैक्टिक एसिड हम ले सकते हैं। सो वी कैन इंक्लूड प्रोबायोटिक कर्ड, बटर मिल्क, कर्ड मीन्स होममेड कर्ड, एंड बटर मिल्क, पनीर, लिमिटेड क्वांटिटी एज इट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ फैट। Avoid milk, cheese and spicy fried non-veg foods। जनरली नॉनवेज फूड, स्पेशली जिन घरों में नॉनवेज नहीं बनता है और लोग बाहर से कंज्यूम करते हैं आउटसाइड फूड, वो स्ट्रिक्टली हमको अवॉइड करना है। और अदरवाइज लो फैट फिश, चिकन कैन बी टेकन, बट नॉनवेज फूड अगर हाई फैट कंटेंट है, जैसे उसमें भी पोर्शन रहता है, ब्रेस्ट पोर्शन और लेग पोर्शन, तो आप क्या फूड ले रहे हैं वो लो फैट रहना चाहिए। फिर उसका कुकिंग मीडियम भी लो होना चाहिए। उसको डीप फैट फ्राई करके बनाएंगे तो वैसे भी हमको अवॉइड करना है। Then fruits and vegetable, avoid raw vegetables and salads, dark green leafy vegetables, cabbage, broccoli, lettuce, ये सब हमको सैलेड फॉर्म में अवॉइड करने हैं। जो भी स्ट्रांगली फ्लेवर्ड वेजिटेबल्स होती हैं, गार्लिक, मूली, रेडिश, ये चीजें हमें अवॉइड करनी है। इनको इसलिए अवॉइड करना है क्योंकि ये ज्यादा फ्लैटुलेंस क्रिएट करेंगे, ब्लोटिंग क्रिएट करेंगे, ज्यादा फर्मेंटेबल शॉर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस करेंगे जो हमारे इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। Eat fruits without skin, avoid high fiber fruits like guava and pomegranate। लेकिन गुआवा नेक्टर लिया जा सकता है, पोमोग्रेनेट जूस लिया जा सकता है। फ्लेयर्स के टाइम पे हमें कोई भी डिजीज, कोई भी हमें नया फूड आइटम इंट्रोड्यूस नहीं करना है, हम रेमिशन के टाइम पे इंट्रोड्यूस करेंगे। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कैन बी बेटर टॉलरेटेड इन कुक्ड, जूसेस, प्यूरीड, कैंड एंड पील फॉर्म। Nuts and oil seeds in remission time can consume in limited quantity, but जब फ्लेयर का टाइम रहता है या डायरिया ज्यादा है, पीक पर है प्रॉब्लम, उस टाइम पे हमें अवॉइड करना है क्योंकि नट्स एंड ऑयल सीड्स स्टूल में बल्क प्रोवाइड करते हैं, हाई रेजिड्यू होते हैं। लेकिन फ्लैक्स सीड्स लिया जा सकता है क्योंकि फ्लैक्स सीड्स में सोल्यूबल फाइबर ज्यादा है, तो वो फ्लेयर के टाइम पे भी हेल्प करेगा। बट अगेन फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तो हमें उस टाइम पे नहीं लेना है। फैट्स, बटर एंड घी कैन बी कंज्यूम्ड इन लिमिटेड क्वांटिटी। घी टाइम लेता है डाइजेशन में, लेकिन बटर और क्रीम इमल्सिफाइड है इसलिए कम टाइम लेते हैं डाइजेशन के लिए। एंड अवॉइड डीप फैट फ्राइड फूड्स विच मे ट्रिगर सिम्टम्स। शुगर्स कैन बी यूज्ड इन लिमिटेड क्वांटिटी। अवॉइड शुगर फ्री फूड्स प्रोडक्ट्स एज दे कंटेन सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल एक कंटेंट है जो कि स्वीटनर का काम करता है और कई सारे शुगर फ्री प्रोडक्ट्स में आता है। हमें लेबल को ध्यान से पढ़ना है, न्यूट्रिशन लेबल एवरी टाइम पढ़िए। अगर आप लैक्टोज अवॉइड कर रहे हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो भी आप पीछे पढ़िए। अगर आप सूप ले रहे हैं तो उसमें कोई लैक्टोज कंटेंट तो नहीं है, या आप शुगर फ्री ले रहे हैं तो उसमें सॉर्बिटॉल नहीं होना चाहिए। सॉर्बिटॉल जो होता है वो ज्यादा डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है। Now, water and fluid intake. Fluid intake is very, very essential to IBD patients. At least 1.5 liters of water per day. It depends on physical activity. आप कोई बेड रेस्ट पर है
तो कितना यूरिन आउटपुट है उसमें हम 500 ml ऐड करते हैं, वो वाटर रिक्वायरमेंट बनती है। लेकिन अगर आप वर्किंग हैं और अपने सभी काम पे जा रहे हैं तो कैसा क्लाइमेट है, टेम्परेचर क्या है, उसके अकॉर्डिंग वाटर की रिक्वायरमेंट चेंज होती है। पर एटलीस्ट 1.5 लीटर पर डे वाटर रिकमेंडेशन है। और फ्लूइड इनटेक भी हमें ज्यादा लेना है, ज्यादा फ्लूइड डाइट लीजिए, ये आपको ज्यादा हेल्प करेगा, डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्ट करेगा। Diarrhea can cause dehydration, so water intake is must. And in severe cases, ORS कैन बी कंज्यूम्ड। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए ORS सोल्यूशन भी बना सकते हैं जो सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस करता है। नाउ रोल ऑफ प्रोबायोटिक्स इन इन्फ्लामेटरी bowel disease. Probiotics are living organisms. When taken in adequate amount, confer health benefit to the host. प्रोबायोटिक्स बैक्टीरियाज हैं, लिविंग बैक्टीरियाज। बस हमको कंडीशन ये है कि जब आप प्रोबायोटिक ले रहे हैं तो प्रोबायोटिक हैज टू बी गैस्ट्रिक एसिड एंड बाइल सॉल्ट्स टॉलरेंट। वो हमारे जो लिविंग बैक्टीरियाज हैं इंटेस्टाइन तक लाइव फॉर्म में ही जाने चाहिए। आपके गैस्ट्रिक एसिड से अफेक्ट नहीं होने चाहिए, बाइल सॉल्ट से अफेक्ट नहीं होने चाहिए। उसी फॉर्म में जब वो इंटेस्टाइन तक जाते हैं तो इंटेस्टाइन की वॉल पे एडहेसिव की तरह चिपक जाते हैं और उसके बाद आपके जब जितने ज्यादा हेल्दी बैक्टीरियाज रहेंगे वहां पे वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। जितना हेल्दी बैक्टीरिया रहेगा उतना पैथोजेनिक बैक्टीरिया के लिए स्पेस नहीं रहेगा, उतना इन्फ्लेमेशन में कमी होगी, इंटेस्टाइनल परमेबिलिटी बेटर होगी। इसलिए प्रोबायोटिक्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बॉडी में, जिनमें मेनली हमने लिखे हैं यहाँ पे एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी एथरोजेनिक है, इवन कार्डियक डिजीजेस में काफी हेल्प करते हैं, एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट है, एंटी बैक्टीरियल होते हैं, एंटी वायरल होते हैं। तो जब ये बॉडी में जब हम इंजेस्ट करते हैं, फूड के थ्रू भी लिए जाते हैं और सप्लीमेंट्स के थ्रू भी लिए जाते हैं मेडिसिनल फॉर्म में। जैसे भी हम ले रहे हैं, अलग अलग स्ट्रेन होते हैं प्रोबायोटिक्स के, लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस, स्ट्रेप्टोकोकस, अलग अलग रहते हैं सारे। तो केसाई, ये अलग अलग प्रोबायोटिक्स अलग अलग काम करते हैं। हर एक बंदे को हर एक प्रोबायोटिक सूट करे ये जरूरी नहीं है, ये हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑब्जर्व कैसे करेंगे, उसके लिए एक अप्रोच होता है। जैसे हमने कोई नया प्रोबायोटिक लिया है, नाउ वी नीड टू फॉलो इट फॉर 4 to 6 वीक्स। उसमें हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे IBD के सिम्टम्स में कितना फर्क पड़ता है। अगर उससे हमें इंप्रूवमेंट मिल रहा है देन कंटिन्यू, अदरवाइज हमें दूसरा स्ट्रेन ट्राई करना है। बैक्टीरिया प्रोबायोटिक्स के डिफरेंट बहुत सारे स्ट्रेन्स हैं, हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स ट्राई करने रहेंगे। बेनिफिट्स ऑफ प्रोबायोटिक्स, जैसा मैंने बताया, हमारी गट फ्लोरा को इम्प्रूव करता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में ईज प्रोवाइड करता है, कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करता है, हाइपोकोलेस्ट्रेमिक इफेक्ट होता है। जो कोलेस्ट्रॉल आपके डाइट इनटेक में है उसको अपने साथ बाइंड करके स्टूल के थ्रू आउट करता है, तो कोलेस्ट्रॉल को लो करता है। प्रिवेंट द फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ कोलोन कैंसर। It lowers the pH of intestinal tract, which affects the enzymatic active of the flora. हमारी intestinal wall से कई सारे enzymes produce होते हैं जो कि digestion और absorption में help करते हैं। जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन की pH को लो करते हैं, जिससे एंजाइमेटिक पॉजिटिवली अफेक्ट होती है एंड प्रो कार्सिनोजेनिक एंजाइम्स रिड्यूस होते हैं। स्टिमुलेट्स इंक्रीज साइटोकाइन प्रोडक्शन। साइटोकाइन हमारी एंटीबॉडीज का बाय प्रोडक्ट होता है। जब भी हमारी बॉडी में एंटीजन, हमारी बॉडी किसी भी मॉलिक्यूल को फॉरेन मटेरियल आइडेंटिफाई करती है तो उसके लिए एंटीबॉडीज बनाती है। जब एंटीजन एंटीबॉडी फाइट होती है तो उसका बाय प्रोडक्ट साइटोकाइंस होता है। तो ये साइटोकाइंस के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम हमारा बेटर परफॉर्म करता है। जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है उसमें ज्यादा हेल्पफुल है, ये साइंटिफिक एविडेंसेस हैं। नाउ सोर्सेज ऑफ प्रोबायोटिक्स, क्या क्या हम ले सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे फूड सोर्सेज अवेलेबल हैं प्रोबायोटिक्स, बट इन इंडिया सम फूड प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल। प्रोबायोटिक कर्ड बहुत इजीली अवेलेबल है। उसके अलावा एसिडोफिलस मिल्क, ये भी बहुत इजीली तो नहीं लेकिन मिल जाता है। प्रोबायोटिक आइसक्रीम इजीली अवेलेबल है। प्रोबायोटिक लस्सी, याकुल्ट, these are sources of probiotics. Homemade curd is also very good source of probiotic. हमें जो मार्केट से हम अगर
लाइक हम अमूल दही या मदर डेयरी दही लेके आते हैं, तो जो मार्केट से ब्रांडेड कर्ड हम लेके आ रहे हैं, ये कर्ड हमको बैक्टीरियाज प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए उसमें वो बैक्टीरियाज नहीं रहते हैं। सेकेंड चीज, उसका जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन चेन है आपके पास डायरेक्ट फैक्ट्री से नहीं आ रहा है, ठीक है। पहले वो मिडिल जो उसमें रहते हैं, व्हाट शुड आई से, जो बीच में जो मिडिल मैन, सॉरी, जो मिडिल मैन रहते हैं बीच में, तो उसके थ्रू आपके पास आ रहा है। तो इट डिपेंड्स कि जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उनकी उससे रिलेटेड नॉलेज कितनी है, क्योंकि प्रोबायोटिक के लिए टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे उसको कैरी किया जा रहा है, अगर वो हाई टेम्परेचर पे है तो वैसे भी उसके प्रोबायोटिक्स अफेक्ट होंगे। उसके अलावा उसको कैरी करने के लिए और हाइजेनिक कंडीशंस, सब चीजें अफेक्ट करती हैं। तो आपको वही चीजें लेनी है जैसे होममेड कर्ड ज्यादा बेहतर एग्जांपल है, आप डेली बेसिस पे घर में जमा सकते हैं और डेली बेसिस पे हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं। इजी टू गेट एंड इजी टू डाइजेस्ट एंड वेरी हेल्पफुल इन आईबीडी। एंड स्टार्ट टेकिंग वन फूड एट अ टाइम, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। 4 to 6 वीक के लिए कोई भी फूड प्रोडक्ट जब नया हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो 4 to 6 वीक्स के लिए हम उस प्रोडक्ट को फॉलो करेंगे। तो हमने जब क्योंकि हमें 4 to 6 वीक्स के अंदर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके बाद हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर फूड से हमें कितना बेनिफिट मिल रहा है। अगर आपके नेगेटिव सिम्टम्स आने लगते हैं, मतलब सिम्टम्स अगर बढ़ने लगते हैं आईबीडी के, तो फिर आपको प्रोडक्ट नहीं कंज्यूम करना है। लेकिन अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखना है तो आपको 4 to 6 वीक के लिए कंज्यूम करना रहता है। देन रोल ऑफ ग्लूटेन फ्री डाइट इन आईबीडी। अभी अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे या फिर आप अपने आसपास सुनते होंगे तो ग्लूटेन फ्री डाइट, कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कुछ इस तरह की डाइट्स जो हैं वो बहुत कॉमन हो रही हैं, फैशन में आ रही हैं, और न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा ग्लैमर वर्ल्ड के साथ जुड़ रहा है। इवन वेट लॉस के लिए ये सारी डाइट्स लोग रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन साइंटिफिक एविडेंसेस के लिए ही हम आगे अपना डाइट प्लान करेंगे, स्पेशली इन केस ऑफ डिजीजेस। तो आईबीडी में ग्लूटेन फ्री डाइट के ऊपर ज्यादा रिसर्चेस अवेलेबल नहीं है। जितनी रिसर्च अवेलेबल है, जितनी रिसर्च स्टडीज अवेलेबल हैं, वो सिग्निफिकेंट एविडेंस नहीं प्रोवाइड करती है कि हम ये कह सकें कि ये बेनिफिशियल है या नहीं है। सीलिएक डिजीज जो रहती है, जिसमें हमको ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, सीलिएक डिजीजेस, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम व्हीट में जो प्रोटीन है, ग्लूटेन व्हीट प्रोटीन होता है, तो व्हीट के प्रति एक सेंसिटिविटी शो करता है हमारा इम्यून सिस्टम, तो हम व्हीट प्रोडक्ट्स कंज्यूम नहीं कर पाते। सीलिएक डिजीज के लिए एविडेंसेस हैं कि ग्लूटेन फ्री डाइट या व्हीट फ्री डाइट जिससे हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन आईबीडी के लिए हमारे पास पूरे रिसोर्सेज नहीं है, एविडेंसेस नहीं है। इसलिए फिर भी अगर हमें ट्राई करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ग्लूटेन फ्री के लिए मेनली हमें व्हीट, राय, बार्ले एंड ओट्स, ये हमको अपनी डाइट से रेस्ट्रिक्ट करना है। सिर्फ ये 4 चीजें रेस्ट्रिक्ट करने से हम अपने इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। तो ये 4 चीजें अगर हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो इनिशियल 4 वीक्स के लिए हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे और उसका रिजल्ट देखेंगे। अगर हमको उससे फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहा है तो हम आगे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर 6 वीक्स। आफ्टर 6 वीक्स स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ग्लूटेन हम री इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, ये क्यों करते हैं सेकेंड टाइम पे री इंट्रोड्यूस, क्योंकि हर एक की बॉडी में अलग अलग सिस्टम रहता है। आप लिटिल बिट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन डाइजेस्ट, अगर सीलिएक डिजीज भी है या आईबीडी में आपको इससे बेनिफिट भी मिल रहा है तो भी स्मॉल पोर्शन आप डाइजेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए 6 वीक्स के बाद थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी फिर से दी जाती है, जिससे हम ये जज कर सकते हैं कि हाउ मच अमाउंट यू कैन टॉलरेट। तो इसलिए ग्लूटेन फ्री के लिए एविडेंसेस नहीं है, बट इट कैन बी ट्राइड इन द गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट। नाउ ट्रिगर्स, आइडेंटिफाई बाय योर ओन डाइट रिकॉर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आईबीडी मैनेजमेंट में या रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन आईबीडी, मेंटेन योर डाइट रिकॉर्ड। डाइट रिकॉर्ड मींस एक डायरी में आप ये टेबल बनाइए कि आपने क्या क्या फूड लिया और आपके फूड से आपको उस दिन मोशन कैसा रहा, आपके आईबीडी के सिम्टम्स में आपको क्या बेनिफिट्स मिले, मूड स्विंग्स कैसे हुए या मूड कैसा रहा, ये सारी चीजें हम उसमें लिख सकते हैं।
आपको सिर्फ एक बार ये टेबल बनाना है, फिर उसमें आप टिक कर सकते हैं, चेंजेस को आप नोट कर सकते हैं। डेली बेसिस पे अगर आप सिर्फ 5-10 मिनट निकाल के ये डाइट रिकॉर्ड बनाते हैं, इसकी वजह से आप अपना बॉडी को ज्यादा अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर पाएंगे। ये की रोल है। मतलब आप अगर अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कर पाते हैं कि मुझे पर्टिकुलर इस फूड से एलर्जी है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम ट्रैक करने लगेंगे तो हम ये बता सकते हैं कि जिस दिन भिंडी ली थी उस दिन ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था, जिस दिन ये लिया। और ये एक बार से हम जज नहीं करेंगे, हम डाइट रिकॉर्ड बनाएंगे तो 2 महीने में हमारे पास, और जितना लंबा टाइम पीरियड होगा ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो हमारी बॉडी को उतना अच्छे तरीके से हम जान सकते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स दे रही है। अगर आपने कोई नया फूड इंट्रोड्यूस किया अपने आप को, तो उसका रिजल्ट कैसा रहा, तो उससे हम जज कर सकते हैं। कुछ कॉमन ट्रिगरर्स हैं जो कि ट्रिगर करते हैं, जैसे हाई फाइबर फूड्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इनसोल्युबल फाइबर, जो कि ज्यादा फर्मेंटेशन कॉज करेंगे इंटेस्टाइन में। हाई फैट फूड्स लाइक डीप फैट फ्राइड फूड्स, नमकीन, समोसा, जलेबी, जो टिपिकल फ्राइड फूड्स होते हैं वो सारे हमें अवॉइड करने हैं। अल्कोहल, अल्कोहल इनटेक ट्रिगर करता है इंटेस्टाइन इन्फ्लेमेशन को, इसको अवॉइड करने की जरूरत है। कैफीन एंड टैनिन, कैफीन कॉफी में प्रेजेंट रहता है, टैनिन और कैफीन दोनों चाय में भी प्रेजेंट रहते हैं। तो टी एंड कॉफी हमको धीरे धीरे बंद करना है। वैसे भी टी और कॉफी स्टिमुलेंट है, और ये आपको एक एडिक्शन की तरफ लेके जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा, जो लोग चाय पीते हैं उनको एक फिक्स टाइम पे चाय के लिए अर्ज होती है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में उसके लिए एडिक्शन होने लगता है। तो किसी भी तरह का एडिक्शन आपके लिए अच्छा नहीं है। तो जो आप कैफीन और टैनिन लेते हैं उसकी वजह से इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन को और ज्यादा बढ़ा सकता है। कार्बोनेटेड बेवरेजेस, सभी तरह के कार्बोनेटेड बेवरेजेस अवॉइड करने हैं। डेयरी में मेनली हमको लैक्टोज अवॉइड करना है, लैक्टिक एसिड से कोई इशू नहीं है। सॉर्बिटॉल, जैसा मैंने बताया, स्वीटनर है और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में डला हुआ हो सकता है, आपको लेबल चेक करने की जरूरत है। स्पाइसी फूड आइटम्स, हमको ज्यादा मिर्च मसाले और गरिष्ठ खाना जिसको हम कहते हैं वो अवॉइड करना है। नाउ डाइटरी पैटर्न, किस तरह से हमको अपना पैटर्न फिक्स करना है? डाइट शुड बी बैलेंस्ड। बैलेंस्ड डाइट का मतलब होता है जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन हम लेके चलते हैं। न्यूट्रिएंट्स का, वो हमारी डाइट में प्रेजेंट रहना चाहिए। बाकी डाइट हमारी 5 फूड ग्रुप से आनी चाहिए: सीरियल्स, पल्सेस, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एंड फैट्स। ओके, तो ये जो हमारे 5 फूड ग्रुप्स रहते हैं, इन फूड ग्रुप्स के अकॉर्डिंग हमको अपना डाइट प्लान करना है। जितनी कलरफुल डाइट होगी उतने फाइटोकेमिकल्स आपकी बॉडी को मिलेंगे। जितने फाइटोकेमिकल्स आपको बॉडी में मिलेंगे वो सभी एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। तो आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, सारे फूड ग्रुप्स पे जाना है, कलरफुल मील्स लेने हैं। SQFM डाइट, स्मॉल क्वांटिटी फ्रीक्वेंट मील्स। आईबीडी के केस में जब आपको ऑलरेडी बॉवल मूवमेंट ज्यादा रहता है तो स्मॉल क्वांटिटी हम थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी देर में लेंगे। मींस आपको पूरे दिन भर में 5 मील लेने हैं, सिर्फ 2 या 3 मील पे नहीं रहना है। ओके, ऐसा नहीं रहना है कि सुबह हमने 8-9 बजे 1 मील लिया फिर 1 बजे, तो ये लॉन्ग गैप है उसकी जगह। और ये ज्यादा बड़े मील्स लेने के लिए हमें फिर हमें लेना, अगर हम कम मील्स लेंगे तो हम लार्ज क्वांटिटी लेते हैं, है ना। 2 मील अगर आप ले रहे हैं तो आप खाना ठीक से खाएंगे, लेकिन वही चीज आप स्मॉल क्वांटिटी करेंगे तो एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन इजी हो जाता है, और जो जल्दी जल्दी बॉवल मूवमेंट है उसमें भी हमको हेल्प मिलेगी, वो नहीं होगा। अवॉइड लार्ज गैप्स और गूगल सर्च। गूगल सर्च मैंने स्पेसिफिकली इसलिए मेंशन किया है, गूगल सर्च डाइट्स लाइक कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड ग्लूटेन फ्री डाइट। हमें ये कोई भी डाइट गूगल से सर्च कर कर नहीं फॉलो करनी है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो डिजीज है वो थोड़ी क्रिटिकल है और उसमें हमको मैनेजमेंट को सीखना जरूरी है। एक एक बंदे की अलग अलग डाइट हो सकती है, हर एक के सिम्टम डिफर कर सकते हैं, तो उनकी डाइट भी अलग ही रहेगी। इसलिए एक्सपर्ट एडवाइस डॉक्टर से, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट ने से, या फिर रिसर्च पेपर्स, उनके थ्रू हमें आगे जाना है, गूगल सर्च से नहीं। नेक्स्ट है सॉफ्ट एंड ब्लैंड डाइट।
सॉफ्ट डाइट, ऑलरेडी आईबीडी पेशेंट्स ज़्यादातर सॉफ्ट डाइट ही ले रहे होते हैं, उनको बॉईल करके लेना है फूड को, प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए। आप प्रेशर कुक करेंगे तो न्यूट्रिएंट ज़्यादा सेव होते हैं, और ब्लैंड मतलब उसमें स्पाइसेस कम होने चाहिए, उसमें फैट कंटेंट कम होना चाहिए, उसको हम ब्लैंड डाइट कहते हैं। मेंटेन अ स्केड्यूल, इट मीन्स एक फिक्स पैटर्न होना चाहिए। आप अगर नोटिस करेंगे कि जिस टाइम पे हम डेली खाना खाते हैं, हम लंच टाइम सपोज हमारा 1 PM है, तो हमें डेली 1 PM के आसपास भूख लगती है, आपकी बॉडी उस सिस्टम को अडेप्ट करती है, उस टाइम पे हमारे गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होने लगते हैं। तो ये बॉडी का एक सिस्टम हमें बनाना चाहिए, उसी सिस्टम के हिसाब से जब हम खाएंगे तो आपकी बॉडी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करेगी। नेक्स्ट है रोल ऑफ एक्सरसाइज इन आईबीडी। लो टू मीडियम पेस एक्सरसाइज इज रिकमेंडेड। वॉकिंग एंड योगा हैव बेनिफिशियल इफेक्ट्स। बहुत सी रिसर्च स्टडीज इसको शो कर रही हैं कि प्राणायाम स्पेशली काफी हेल्प करता है, और लो पेस एक्सरसाइज, जैसा कि डिपेंड करता है किसकी कैसी फिजिकल कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं। लेकिन लो टू मीडियम पेस, नॉर्मल वॉक आप कर सकते हैं, लेकिन जॉगिंग या रनिंग हम अवॉइड करने के लिए कहेंगे। उसके बाद प्राणायाम, मेडिटेशन, आसन में भी कुछ फिक्स होते हैं, मरकट आसन, पवन मुक्त आसन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, ये ज्यादा हेल्प करते हैं। टाइम पीरियड कितना होना चाहिए एक्सरसाइज करने का, ये डिपेंड करेगा, इंडिविजुअल वेरिएशन रहेंगे, ग्रेजुअली हमको इंक्रीज करना है, और शुड बी इन फ्रैक्शंस। कीप योर सेल्फ एक्टिव थ्रू आउट द डे इंस्टेड ऑफ डूइंग एक्सरसाइज एट वन टाइम। ओके, मीन्स आप मॉर्निंग में 1 घंटा, आईबीडी पेशेंट का डिपेंड करता है कितना आप कर पाते हैं, लेकिन अगर आप 5-10 मिनट्स भी स्टार्ट कर रहे हैं तो 5-10 मिनट्स आपने दिन में किया है तो आप मॉर्निंग में किया है तो आप इवनिंग में भी कीजिए। ऐसे आपको फ्रैक्शंस में बढ़ाना है, अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है। नेक्स्ट है टेक होम टिप्स। टेक एडवाइस फ्रॉम क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन एंड लर्न द मेथड, बिकॉज इट्स अ क्रोनिक डिजीज। आप लाइफ लॉन्ग किसी न्यूट्रिशनिस्ट के गाइडेंस में नहीं रह सकते हैं, लेकिन आपको उनके साथ 3 या 4 महीने में आप इस पैटर्न को समझ सकते हैं कि डाइट को समझना कैसे है, अपनी डिजीज कंडीशन के साथ कैसे जोड़ के हम उसको बेटर इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि एक ही डाइट सबको सूट नहीं हो सकती है, इसलिए इंडिविजुअल वेरिएशन होते हैं। फिर से मैं कहूंगी गूगल सर्च या एक स्पेसिफिक आईबीडी डाइट प्लान नहीं है। मेंटेन अ डाइट रिकॉर्ड, मैंने एक्सप्लेन किया है, डाइट रिकॉर्ड को अच्छे से बनाइए, आप अपनी बॉडी को खुद से ऑब्जर्व कर पाएंगे। प्रॉपर च्यूइंग इज मैंडेटरी। ऑलरेडी आईबीडी में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन अफेक्टेड है। डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम आवर माउथ, हमारा एकदम माउथ से ही डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो हमें फर्स्ट स्टेप से ही ध्यान रखना है। च्यूइंग प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। खाना खाते समय कोई भी गैजेट्स या टीवी हमें नहीं यूज करना है, नहीं देखना है, उसकी वजह से फूड इनटेक पे फर्क पड़ता है और आपको नहीं पता चलता कई बार कि आपने कितना खा लिया, ठीक है, और कितना खाया, जल्दबाजी में खाया, तो ये सारी चीजें फूड इनटेक को अफेक्ट करती हैं। एसक्यूएफएम डाइट इज हेल्पफुल। फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन अप्रोच, फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन अप्रोच इज, फर्स्ट जो मैंने बताया 4 वीक्स के लिए, 4 to 6 वीक्स हम फॉलो करते हैं, उसके बाद हम री इंट्रोड्यूस करते हैं कोई भी फूड आइटम, उसके वजह से हम जज कर पाते हैं कि कितना अमाउंट आपकी बॉडी टॉलरेट कर पा रही है। बैलेंस डाइट लेना है, सारे मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ध्यान में रखना है। पोस्ट ऑपरेटिव, जब ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है, उसके बाद डाइट के बहुत से मॉडिफिकेशंस रहते हैं। इनिशियली अगर रिक्वायरमेंट है हॉस्पिटल में एंटेरल और पेरेंटल न्यूट्रिशन पे रहते हैं, उसके बाद हम क्लियर लिक्विड डाइट से स्टार्ट करते हैं, फिर लिक्विड डाइट पे आते हैं, सॉफ्ट डाइट पे आते हैं, धीरे धीरे उसको चेंज किया जाता है। तो जो अभी हमने डिस्कस किया है वो सब हमने एट होम लेवल गाइड लिया है। So we can move to question answer session. Thank you, Nisha, for this detailed presentation. So My pleasure. the first question is, there is a lot of popular talk about protein powders. So are they recommended and safe? See, there are lots of protein powders in the market, and the one simple principle is there. When you cannot take enough quantity of protein by your mouth, then you should go for supplement. Protein powders are supplements. If you are able to take the recommended quantity of the nutrient by your mouth, then no need to take supplements. Okay, अगर डिजीज कंडीशन है, जैसे प्रेगनेंसी केस है, ओके, प्रेगनेंसी विद आईबीडी, या फिर कोई और भी कंडीशन है जिसमें हमें ज्यादा न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है और हम उतना न्यूट्रिएंट बाय डाइट दे ही नहीं सकते, ऑलरेडी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पुअर है, तब हम सप्लीमेंट्स की हेल्प लेते हैं।
Next is patients often face issues like jerk, bloating, diarrhea, and constipation. What food do you recommend for tackling such issues to minimize the use of drugs? जो जीआरडी है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, इसमें क्या होता है कि जो हमारा ईसोफेगस है उसका लोअर स्फिंक्टर जो रहता है उसका डिसफंक्शन के वजह से, या उसका डिसफंक्शन क्यों हो जाता है, क्योंकि जो स्टमक का प्रेशर उसके ऊपर पड़ता है उसके वजह से, पुअर डाइजेशन होने की वजह से वो स्फिंक्टर पे, उसके फंक्शन पे फर्क पड़ता है और फूड वापस ऊपर आने लगता है। रिगर्जिटेशन, जब फूड इंजेस्ट हमारी ईसोफेगस में आने लगेगा तो हमें हार्ट बर्निंग सेंसेशंस होंगे। ओके, ऐसा फील होगा, एसिडिक फील होगा, आपको मुंह में एक खट्टापन या सोरनेस फील होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट इज रिड्यूस हरी वरी एंड करी। आप जल्दबाजी में बिल्कुल मत खाइए, स्मॉल क्वांटिटी लीजिए। उसको रिड्यूस करने के लिए आप प्रोटीन्स ले सकते हैं। प्रोटीन आपको कैसे ऐड करना है, हाई टेम्परेचर हम बिल्कुल नहीं देते हैं, जब भी ऐसा रहता है हम मीडियम या कम रखेंगे, कम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर का फूड ले सकते हैं। और प्रोटीन्स अगर हम लेते हैं तो प्रोटीन्स की वजह से, प्रोटीन बफर का काम करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, इसलिए आप ऐसे केसेस में ऐसी डाइट ले सकते हैं, प्रोटीन ऐड कर सकते हैं। और बाकी हमको सॉफ्ट एंड ब्लैंड डाइट रखना है। Okay. Next, is there a relation between diet and sleeping patterns? Is it one way or a two-way relationship? इट्स कम्प्लीटली टू वे। आपने अगर कभी नोटिस किया होगा कि अगर आप ने ज्यादा खाना खाया है तो यू विल नॉट बी एबल टू स्लीप प्रॉपरली। अगर ओवर ईटिंग हुई है तो आप नहीं सो सकते, या हैवीनेस फील हो रही है, देन यू हैव टू वॉक, बिकॉज जो हैवीनेस है उसकी वजह से हम लेटने पे भी हमको कंफर्ट नहीं मिलेगा। ओके, तो डाइट स्लीप को अफेक्ट कर रही है। अगर हम पूरी ठीक तरह से सोए नहीं है तो भी हमारा डाइटरी इंटेक पे फर्क पड़ता है, क्योंकि नींद की वजह से, स्लीपिंग पैटर्न की वजह से हमारे हॉर्मोन्स भी अफेक्ट होते हैं। तो ये टू वे प्रोसेस है और पूरी तरह से अफेक्ट करता है। 7 to 8 आवर्स स्लीप इज मैंडेटरी, that too at fixed time. For people working regular night shifts, what kind of diet changes do you recommend? Any food that may minimize stomach issues after night shifts? Okay. See, if they are working regularly for night shifts, means अगर उनका ये बहुत वेरी करता है तो मैनेजमेंट डिफिकल्ट है। अगर आज नाइट शिफ्ट है और कल नहीं है तो उसको मैनेज करना मुश्किल है। इफ समवन इज डूइंग नाइट शिफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम तो उनको एक स्केड्यूल बनाने की जरूरत है। उनको एक फिक्स टाइमिंग पे अपना, जैसे ऑफिस टाइम उनका रात भर रहेगा तो जो मॉर्निंग टाइम है जब उनका स्लीपिंग टाइम रहेगा तो उनको एक तो डार्कनेस रखनी है, सोने के लिए कंफर्टेबल जोन होना चाहिए। आपकी नींद अगर ठीक से पूरी होगी तो उसके बाद आपके डाइटरी मील्स में न्यूट्रिएंट इंटेक में फर्क नहीं आएगा, लेकिन जो नाइट शिफ्ट के टाइम पे हमारे मील्स रहेंगे वो सारे मील्स लाइट रहेंगे, लो एनर्जी रहेंगे, और आईबीडी के केस में लो फाइबर रखना है, फैट का अमाउंट कम रखना है। Are there any anti-inflammatory foods that we can consume? Is turmeric helpful? Yeah, turmeric is an anti-inflammatory food, and many foods are there which contains phytochemicals and it acts as anti-inflammatory molecule. So like turmeric definitely helps in IBD because it contains curcumin, and curcumin जो है वो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। इसी तरह से दूसरे जो फूड आइटम्स जिनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स मॉलिक्यूल्स रहेंगे, जैसा मैंने एक बताया, कलरफुल फूड आइटम्स, जो भी आप कलरफुल फूड लेते हैं, नेचुरल फूड सोर्सेस की बात कर रही हूं, तो अगर आप कलरफुल ले रहे हैं तो उसमें आपको फाइटोकेमिकल्स मिलते हैं। सेकेंड, दालचीनी, तेज पत्ता, ब्लैक पेपर और करक्यूमिन का कॉम्बिनेशन अगर आप लेते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा बेटर है और वो ज्यादा अच्छे से एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है। और बड़ी इलायची, जो हमारे इंडिया में ट्रेडिशनली बड़े मसाले या खड़े मसाले कहे जाते हैं, ये रिच सोर्स है फाइटोकेमिकल्स के। Can you recommend some foods to combat anemia, which is common among patients with inflammatory bowel disease? Yeah, I also told you that iron deficiency anemia is very common in IBD. So iron-rich sources are fruits and vegetables are there, which we can include in pureed and canned form. When we talk about cereals, you can add poha.
poha to your diet, which is rich source of iron, and sanwa millets, sama, जिसको हम बोलते हैं, जो फास्टिंग में जनरली हम खाते हैं. दिस इज ऑल्सो गुड आयरन रिच प्रोडक्ट. एंड पल्सेस हमको लेना है, लेकिन प्रॉपर कुक्ड फॉर्म में हम लेंगे. ओके उसके बाद वेजिटेबल्स में, डार्क लीफी वेजिटेबल्स में आयरन कंटेंट अच्छा रहता है, जो कि हम अगर फ्लेयर्ड के टाइम पे नहीं, लेकिन रेमिशन के टाइम पे दे सकते हैं. और अगेन वेल कुक्ड प्यूरीड फॉर्म will be prescribed. And उसके अलावा और आयरन में नट्स एंड ऑयल सीड्स में भी लिटिल बिट क्वांटिटी रहती है, लेकिन नट्स एंड ऑयल सीड्स में हमको अभी फ्लैक्स सीड्स ही हमने बोला है लेने के लिए, बाकी नट्स आपको अवॉइड करने हैं. और बाकी स्पाइसेस जो हम नॉर्मल अपने फूड में स्पाइसेस लेते हैं, वो अच्छा सोर्स है आयरन के लिए. It is said that nutritional value of food is destroyed when boiled. A lot of our diet is composed of double boiled food, especially during flare-ups. Since we can tolerate only soft foods, what do we do? Yeah. See, during cooking there are so many cooking methods by which we can prepare our food. In boiling, we lose mainly vitamin B1, thiamine, and vitamin C. Mainly इन दो न्यूट्रिएंट का लॉस होता है. अदर न्यूट्रिएंट्स रिमेन सेम. फिर आपका डिपेंड करता है कि आप क्या कुकिंग मेथड यूज कर रहे हैं. जैसे अगर हम ओपन पैन बॉइलिंग करते हैं, तो विटामिन ए भी हमारा ऑक्सीडाइज हो जाता है. इसलिए प्रेशर कुक करना बेटर सोल्यूशन है. प्रेशर कुक करने से एक तो कुकिंग टाइम रिड्यूस हो जाता है, आप जल्दी कुक कर लेते हैं. और कवर करके, कभी भी आप पैन में कुछ कुकिंग कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर कवर करके हमें पकाना है. न्यूट्रिएंट को ज्यादा सेव करता है. और बाकी हमको बॉइलिंग पे दो ही न्यूट्रिएंट का लॉस हो रहा है, थायमीन एंड विटामिन सी, जो हम इजीली फ्रूट्स के थ्रू, जूसेस के थ्रू डाइट में ऐड कर सकते हैं. IBD can become a challenge for pregnant women. How should they optimize their diet to keep up their energy levels and maintain their health? सी, प्रेगनेंसी में ऑलरेडी कुछ कॉम्प्लिकेशंस या कुछ हेल्थ चेंजेस रहते हैं बॉडी में, हार्मोनल चेंजेस होते हैं. तो प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन भी होता है. प्रेगनेंसी खुद से कॉन्स्टिपेशन कॉज करती है. तो हमें अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स जाना है, जैसा मैंने अपने पीपीटी में डिस्क्राइब किया. उसके अलावा प्रेगनेंसी में एनर्जी, प्रोटीन, सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है. तो हमें जब डाइट प्लान करते हैं तो एडिशनल फूड की रिक्वायरमेंट रहती है, जो हम उसमें ऐड करेंगे. बाकी सारी चीजें को उसी तरह से ध्यान रखेंगे. कॉन्स्टिपेशन उसमें होता है, तो जो सिम्टम्स आईबीडी के आ रहे हैं इंडिविजुअल, उनको उस तरह से ट्रीट किया जा सकता है. Are dietitians / nutritionists aware about IBD in India? Is there any IBD specific research about diets and food going on in India? Actually, I am not the right person to comment on this because किसकी knowledge किस तरह से है. लेकिन फिर भी मैं ये suggest करूंगी कि if you are looking for a dietitian or nutritionist, you should look for qualified nutritionist. You should ask for their education. Are they having degree or not? Because nutrition के field में unfortunately कुछ quack courses होते हैं जो 6-8 महीने का डिप्लोमा जैसा रहता है. तो you need to avoid that thing. So ask for their degree. Ask for their education, or you can go to gastrointestinal, especially जो hospitals हैं, उन hospitals में अगर आप जाते हैं जो GI system के लिए काम करते हैं, तो वहां पे dietitians regularly उसी के लिए काम कर रहे हैं. And I think qualified dietitians must have this knowledge. Thank you, Nisha, for today's session. It was a wonderful session. My pleasure. Very informative. Yeah, thank you, Thanks. Nisha. I think मतलब इतना इन्फो में हॉस्पिटल्स में भी नहीं मिलता फ्रैंकली. मतलब स्पीकिंग मतलब कि मतलब इतना मुझे मतलब इतना इन्फो मतलब क्योंकि हॉस्पिटल्स में इतना कंसल्टेशन टाइम भी नहीं हो पाता है, तो मतलब इतना इन्फो में नहीं मिलता जितना आज आपने मतलब पूरा डिटेल्ड और साइंटिफिक तरीके से आपने समझाया है. तो Thank you so much. डेट है आपका हमारे ऊपर. मैं आगे भी अवेलेबल हूँ, अगर आपको कभी भी कुछ जरूरत रहती है. बहुत सारे लोगों ने मुझे Contact कांटेक्ट किया है आपके कांटेक्ट नंबर के लिए, तो मैं आपको उनका क्लिनिक का नंबर मतलब शेयर कर दूंगा, आप मुझे भेज दीजिएगा. बिल्कुल. इवन नेक्स्ट टाइम भी कुछ अपडेट्स रहते हैं या हमको फिर से करना रहेगा, तो आई एम अवेलेबल. Thank you. ऑलरेडी यू आर डूइंग ग्रेट, तो इतना तो मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ. थैंक यू सो मच. Thank you. वेलकम. और माय आपने प्लेजर. इतना सारा टाइम दिया हमारे 1 घंटे के था, बट यू गिव अप अ लॉट ऑफ टाइम, एंड सो थैंक यू सो मच. Yeah.
It's my duty. It's okay. Thank you. Okay. Okay. Thank you. So, Ciao. bye.